أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کیسی حال ہو ہے؟ میم؟ ٹھیک ہوں الحمد للہ. آپ کیسی ہیں فوزیہ؟ الحمدللہ. سب بس ٹھیک گلا ہے؟ آج کل نہیں جی اس کو فلو چھوڑے. بس پھیلا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں اسلام آباد میں تو کافی گڑبڑ ہوئی ہے بارش میں. کل دیکھی طوفانی بارش وغیرہ. اولے بھی پڑے ہیں کچھ کہ ایسی جھوٹی خبریں ہوتی ہیں؟ نہیں نہیں، پرسوں رات کو ہوا تھا. ہاں ہاں ہاں. جی اولے پڑے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں. تھوڑی اب ٹھنڈ آ گئی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں. ویدر میں چینج آئی. بس فلو بہت پھیلا ہوا ہے. کافی پانی وغیرہ روڈوں پہ میں دیکھ رہی تھی اور جی وہ لگاتار کافی گھنٹے رہی نا بارش بارش. ہوئی. ہاں کافی جی دیر رہی ہے. اچھا تم صحیح بات ہے. یہ صحیح ایسے ہی بس میری نظر پڑی. میں نے کہا کہ اچھا. کیا ہو رہا ہے. نیوز وغیرہ تو مجھے ہاں سننے کا ٹائم نہیں ملتا اتنا لیکن میں کچھ ایسی ویڈیوز وغیرہ دیکھ لیتی ہوں ویدر پہ نا. جی جی. تو اولے وہ ساری کراچی رات ہی کا یعنی بارش کے ساتھ پڑتے رہے ہیں کافی. کراچی کی طرف بھی تھوڑا اثر تھا. ادھر بھی تھا. ہاں اچھا جی. اولے بھی پڑے ہیں. ابھی تو ہوں. شروعات ہے. پوری جی گلوبل ویدر جو ہے نا وہ چینج ہو رہا ہے. ہاں جی. بالکل ہی لیکن چینج یہ ہو کہ رہا سردی ابھی تک یہاں اس طرح سے نہیں آئی ہے. ہے. ہلکا سا بس یہ کہ آپ شال لے لیں تو کافی ہے. کوئی زیادہ سردی نہیں آئی. ہاں ابھی ورنہ موسم تو ابھی تو نومبر میں تو بڑی ٹھنڈ ہوا جایا کرتی تھی کچھ سال پہلے. اچھا میں تو سمجھے دسمبر میں شروع ہوتی ہے. نہیں نہیں، پہلے تو جو نومبر پیک میں. ٹائم ہوتا ہے وہ جنوری اور دسمبر ہی ہوتا ہے آئی تھنک. جی وہ 2 ہی مہینے ہوتے ہیں. فیبرری میں پھر آپ کا چینج ہو جاتا ہے. موسم چینج ہو جاتا ہے. چلے کوئی نہیں. موسم بھی اسلام آباد میں تو سارے موسم اچھے ہوتے ہیں. ہاں اللہ کا شکر ہے. مصیبت تو بیچارے ان کی آتی ہے نا جو جن کے پاس چھتیں بھی نہیں ہیں. صحیح بات ہے. چلے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. شروع کرتے ہیں. محموز جی کو جو ہے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محموز کو تھوڑا ریوائز کرتے ہوئے جاتے ہیں تاکہ پتہ جی چل جائے کہ ہمیں کیا سمجھ آئی تھی. تو محموز جو ہوتا ہے وہ حمزے سے ہوتا ہے. حمزہ تو جی اگر حمزہ آ جائے فا عین لام کسی بھی جگہ پہ تو وہ فعل جو ہوتا ہے وہ محموز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. فعل کی بات ہو رہی ہے. فعل کب جی محموز ہوتا ہے؟ جب اس کے فا کلمے میں اور عین کلمے یا لام کلمے کسی ایک جگہ حمزہ آ جائے. دو حمزے اکٹھے نہیں آ سکتے. وہ صرف کسی روٹ ورڈ کی وجہ سے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر روٹ ورڈ آ جائے یا پھر کوئی ایسا حمزہ آ جائے جو ایکسٹرا ہو تو پھر دو حمزے اکٹھے ہو جاتے ہیں. یا پھر وہ انا ضمیر کا حمزہ ہوتا ہے وہ اکٹھا ہو جائے تو پھر آپ کے دو حمزے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ورنہ دو حمزے نہیں اکٹھے ہوتے. اچھا اب اس کے بعد کیا ہے؟ معموز الفا معموز العین یہ سب آپ کو پتا ہے نا. معموز اللام یہ پتا ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے. پھر تبدیلیاں کس میں ہوتی ہیں؟ محموز الفا میں ہوتی ہیں. اور وہ بھی کس میں ہوتی ہے؟ ثلاثی مجرد میں. اور وہ بھی کس میں ہوتی ہے؟ ایک صیغے میں ہوتی ہے. صرف ایک صیغے میں. کس صیغے میں ہوتی ہے؟ واحد متکلم کے صیغے میں. وہاں دو حمزے اکٹھے ہو جاتے ہیں. جہاں تک مزید فی کی بات ہے تو مزید فی میں باب افعال میں ہوتی ہے تبدیلی. ٹھیک ہے. اور باب افتعال میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو باب افعال کا تو ہمیں پتہ ہے. آمنا یؤمنو ہم پڑھتے رہتے ہیں نا. آمنا یؤمنو اور یہ سب ہوتا رہتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے. اس میں بھی روٹ ورڈ کی وجہ سے اور ایک حمزہ شروع میں آ جاتا ہے تو اس میں ہوتی ہے. اور باب افتعال میں تبدیلی ہوتی ہے. اس کی ابھی تک ہم نے کوئی مثال ایسی کی نہیں ہے. ہمارے سامنے آئی نہیں ہے. ہم انشاءاللہ جب قرآن مجید میں کوئی ایسا آ جائے گا تو اس کو کر لیں گے. فکر کی کوئی بات نہیں ہے. صحیح. باقی کسی میں تبدیلی نہیں آتی. باقی مزید فی کی کسی باب میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اب باب افتعال میں کیا تبدیلی آتی ہے اس کی اگزامپل ہمارے سامنے بک میں نہیں ہے تو وہ انشاءاللہ میں جیسی کو مجھے ملتی ہے قرآن میں یا میں کسی اور بک میں دیکھوں گی تو میں وہ آپ کو بتا دوں گی. اچھا پھر اس کے بعد ہم نے ان کی گردانے کی تھی. گردانوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف آپ کا جو ہے یہ جو ہوتا ہے نا واحد متکلم کا صیغہ جو ہے واحد متعلق غیر مطلق. ہاں بس اس میں مضارع میں وہ بھی نہیں آتا. مضارع میں کس میں آتی تبدیلی؟ مضارع میں آتی ہے ماضی بارے میں میں آتی؟ آتی ہے. ماضی مضارع میں میں. نہیں آتی. جی ماضی میں نہیں آتی. ماضی سیدھی سیدھی گردان بنا لیں. یہ جو صیغہ ہوتا ہے نا اس میں تبدیلی آتی ہے. جی کھڑا الف دیکھ رہے نا جی. اس جی میں. ہاں ایک حمزہ روٹ ورڈ کیا ہے اور ایک اس میں الف کا وہ انا ضمیر کا آ جاتا ہے. اچھا باقی ان کی گردان مجہول کی گردان ہے تو وہ فعلا کے وزن پہ آپ نے پوری گردان بنا لینی ہے. کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اچھا اس کے بعد اس کے مضارع میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ تبدیلی آئی ہے مجہول میں نا.
जी उमरु, तो इसका युफ अलू के वजन पे बनता है ना, तो इसमें भी मुझे कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही, युफ अलू पे ही बन रहा है ना, जी तो इसमें कोई तब्दीली नहीं है। तो वो जो दूसरा हमजा था ना वो वाव में चेंज हो गया ना, कि पीछे जी, दम्मा आ दमा गया, की वजह से। दम्मा की वजह से दूसरा वाला हमजा जो था हमारा रूट वर्ड का, वो वाव में चेंज हो गया, तो उसमें भी कोई इतनी तब्दीली आपको नजर नहीं आ रही। दो हमजे यहाँ पे जरूर इकट्ठे हुए थे, लेकिन मजहूल की वजह से फिर वो खत्म हो गया मामला। तो आपने इसी तरह बना लेना। बाकी कुरानी मिसालें थी, ठीक है। आमना कैसे बनता है, बाब फाल में कैसे बनता है, बताया था। दो हमजे जब इकट्ठे हो जाते हैं, सेकंड वाले, पहला वाला मुतारिक होता है, दूसरा वाला साकिन होता है, क्योंकि साकिन अफ होता है। अफ अला के वजन पे होता है ना, तो दूसरा जी साकिन होता है। तो फिर हम दूसरे हमजे को पहले हमजे की हरकत के मुताबिक हरफ से चेंज कर देते हैं। चेंज कर देते तो हैं। ये तजवीज में भी रूल आता है, इसमें भी आता है। बाकी इसमें क्या हुआ है, इसमें भी दो हमजे इकट्ठे हुए हैं, एक रूट वर्ड का हमजा इकट्ठा हुआ है और एक और बाब मुफाअला का इकट्ठा हुआ जी है ना। अखजा का एक रूट वर्ड है, बाब मुफाअला में क्या होता है शुरू में, क्या होता है, पहला सिगा क्या होता है बाब मुफाअला। मुफाअला का, जादला, हम्म, जादला युजादिल जैसे होता है ना। इसी तरह जी यहाँ पर आपका क्या होगा, आपका ये हमजा, ठीक है, ये एक हमजा तो आपका वो बाब का है ना, जैसे वजन क्या होता है, बा मुफाला फाअला। का वजन होता है फाला है ना। फाल है। अब आपका यहाँ पे भी हमजा आ गया, फा में भी, और यहाँ भी हमजा आ गया, जी ठीक है। अब जी पहला हमजा आपका क्या है, मुतहरिक है, ठीक है, और दूसरा हमजा क्या है, वो आपका अलिफ सा- साकिन है ना, जी जी दूसरा हमजा साकिन है। तो आपका वही वाला कायदा यूज हो गया कि पहला हमजा, अगर पीछे कोई और हरफ हो, अगर यहाँ पे भी हमजा ही होता ना, तो फिर जी क्या होता, उसको हम खड़ी इसमें जबर चेंज, लगा देते हैं। हाँ वो हम यही कर देते। लेकिन अब यहाँ पे कुछ और है ना, तो फिर इसमें आपका क्या हुआ है, इसमें आपका उन्होंने ये बताया था कि अगर पीछे कोई और हरफ हो मुतारिक हो, तो फिर उसको तो हम हरकत के अकॉर्डिंग हरफ से बदलेंगे ना, तो अलिफ ही बन जाएगा। इसको अलिफ में बदल देंगे, इस वाले को अलिफ में बदल देंगे, ठीक है, इस वाले को अलिफ में बदलेंगे। जी अलिफ में तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड वाले को। ये बन गया ना फिर, जी ठीक है। यहाँ भी एक हमजा आया था और ये दूसरा वाला भी और हमने अलिफ में चेंज कर दिया, जी ठीक है। तो मुताहरिक ये और आप, साकिन हो गया तो वही बन ये समझ आ गई जाएगा। आपको क्या करना है। जी जब आपका कोई और हरफ मुतहरिक हो, तो इस दूसरे वाले हमजे को आपने क्या करना है, पहले वाले हमजे की हरकत के मुताबिक नहीं चेंज करना, सिंपली इसको अलिफ में चेंज कर देना। तो इस तरह क्या होगा, एक अलिफ पहले था, एक अलिफ बाद में हुआ, दोनों मर्ज के ऊपर मद आ गई। अगर दो हमजे होंगे ना, पीछे भी हमजा होगा, तभी यहाँ, ऐसा होगा। हाँ हाँ, तभी ऐसा होगा। अगर कोई और हफ्ता, यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, देखिए आप अगर देखें तो फा की जी जगह आपका यहाँ पर फा की जगह आपका हमजा ही आएगा ना। जी नहीं बाजी, रूल तो यही बन रहा है ना, देखें रोल तो जबर के हाँ, अकॉर्डिंग ही नहीं हमें है, हर्फ में तब्दील वो करना है ना। असल असल में पता है हुआ क्या है, दैट्स जी माय फॉल्ट। मैंने इसको हमजा समझा ही नहीं ना, मैं इसको कोई और फा समझ रही हूँ, मैं इसको फा समझ रही हूँ, ठीक है। पास ये फा समझिए नहीं है, ये सही। हमजा है, ठीक है ना। जी हम ये जाए हमजा बिल्कुल। है, क्योंकि एक तो रूट वर्ड का है और एक बाप का है। जी बाप का बिल्कुल। अभी आएगा, बाप का अभी आएगा, जी ठीक जी है। बिल्कुल। वो बाद में हम्म। आता है ना, तो वो बाद में आया, उस पे सुकून है। और ये आपका फा कलमा है, ये आपका ये है, और ऐन कलमा आपका खा है और जा है, जी ठीक है। इस तरह से हो गया। अब ये वही वाला रूल है, ठीक है, एक हमजा मुतारिक एक साकिन, तो दोनों को आपने मर्ज करके ये कर देना। जी सर। तो इसमें बाब मुफाला में भी तब्दीली आई है, ठीक है। जब भी कौन सी तब्दीली है, वही बाब फाल वाली तब्दीली है ना, यहाँ भी जी वही वही नहीं है। उसमें भी एक हमारा हमजा आमना वाली, जो आमना वाली हमारी तब्दीली थी, जी वही है। वही वाली है ना, आमना वाली है। तो यहाँ पे भी वही आमना वाला मसला पैदा हुआ है, तो यहाँ पे हमने बना लिया इसको, क्योंकि एक हमजा रूट वर्ड का है और एक आपका बाप का है। बस यहाँ पर ये फर्क है कि आपका ये हमजा दूसरी जगह पे आ रहा है, ठीक है। और वहां पर ये फर्क था कि आपका एक्स्ट्रा हमजा पहले आ रहा था और रूट वर्ड का आमना का बाद में आ रहा था, सही है। बाजी तो इसके बस नीचे जेर क्यों दिया आपने? है, पहले वाले के नीचे आपने जेर क्यों लगाई है? जेर नहीं लगाई, वो मैंने वैसे लाइन लगाई थी।
लाइन लगाई थी, ठीक ऊपर हमजा लगाया ना, हमजा पे जबर लगाया। ठीक है। तो ये बस हो गया। अब बाब इफ्तियाल की कोई मिसाल नहीं है, लेकिन मैं इंशाल्लाह किसी ग्रामर, अभी मैं करना चाह रही थी लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं किसी बुक में से आपको कोई और मिसाल बाब इफ्तियाल की। तो ये सारी मिसालें कुरान से में कोई तब्दीली नहीं हो रही, सिवाय कह रहे हैं बाब इफ्तियाल के, उसमें भी इसमें मुझे कोई नजर नहीं आ रही। इसमें तो नहीं है, माजी मैंने कहा माजी मुजारे और मुदस्तर में तो कोई तब्दीली नहीं है। अब हो सकता है किसी और सिगे में अंदर जाके आती हो, वो मैं इसको चेक करके बता दूंगी। वो जब पुरानी मिसालें अगर होती कोई मिसाल तो वो लोग दे देते। अच्छा जी, उसके बाद मुदाफ आज पढ़ना है हमें। आसान टॉपिक है, पहले भी किया हुआ है। इसकी एक आइडियल सिचुएशन होती है, अगर ना हो तो बनानी पड़ती है ना। बिल्कुल। अच्छा, पढ़ना शुरू करते हैं हम इंशाल्लाह। अच्छा जी, कौन कौन आया है क्लास में? माशाल्लाह सभी आए। अच्छा, ईमान आए, थोड़ा पढ़े। फारिग है? नहीं। अच्छा जी, नुज़त आप आ जाए। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मुदाअफ, हम्म, ऐसे अस्मा व अफ़ाल जिनके हुरूफ मादा में एक ही हुरूफ 2 मरतबा आ जाए, इन्हें मुदाअफ कहते हैं। हर्फ ए, हर्फ। हर्फ हर्फ जमा सही। जो होती है ना वो हुरूफ होती है, और एक और हाँ, जमा भी होती है, आरुफ लेकिन भी हम लोग होती कितने गलत पढ़ते हैं ना। है। हाँ, हुरूफ मैंने बहुत से को देखा है हुर्फ पढ़ते हैं, हुर्फ, जी। पता नहीं हुर्फ क्यों पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, जी, हरफ पढ़ेंगे या हर्फ? हर्फ पढ़ेंगे ना। हर्फ, ओके, उर्दू में जब होता है तो साकिन होता है। ठीक है। हर्फ। एक ही हर्फ 2 मरतबा आने की मुंदरजा झेल सूरतें हैं। हम्म, नंबर 1, जब फा और ऐन कलमा एक ही हर्फ हो, मसलन वबारुन। नंबर 2, जब फा और लाम कलमा एक ही हर्फ हो, मसलन सुलुसुन। नंबर 3, जब आइन और लाम कलमा एक ही हर्फ हो, मसलन मददुन। इस सबक में हम सिर्फ तीसरी सूरत के मुतालिक पढ़ेंगे, यानी वो सूरत जब हुरूफ मादा का आइन और लाम कलमा एक ही हर्फ हो, मसलन मीम दाल दाल, काफ सौद सौद, दाद रा रा, दाल आइन आइन, फा रा रा, ता बा बा, मीम सीन सीन। ठीक आइन और लाम कलमे के हुरूफ के लिए हम मिसलैन की इस्तिलाह इस्तेमाल करेंगे, जिनमें आइन कलमा मिसले अव्वल और लाम कलमा मिसले सानी होगा। ऐसी सूरत में कभी मिसलैन का इदगाम किया जाएगा और कभी नहीं। हम्म, कभी उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, कभी कभी उसको छोड़ दिया जाएगा। सही है। जी। इदगाम की आइडियल सूरत, मिसले अव्वल साकिन और मिसले सानी मुतहर्रक। मिसले अव्वल अगर साकिन ना हो तो इसे साकिन करेंगे। मिसले अव्वल को साकिन करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, मिसले अव्वल की हरकत मा कबल मुंतकिल करके अगर मा कबल साकिन हो, वरना नंबर 2, मिसले अव्वल को जबरदस्ती साकिन कर देंगे, यानी हरकत खत्म कर देंगे। मिसले सानी अगर मुतहर्रक ना हो तो इसे मुतहर्रक नहीं करेंगे, और इस सूरत में इदगाम नहीं होगा। इदगाम कब नहीं होगा? जब सुकून बाद में आएगा और हरकत पहले आएगी। ठीक है। जी। तो अब इदगाम नहीं होगा, अब उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, वो लाइलाज हो गया है। ठीक है, उससे पहले वाला हम इलाज कर सकते हैं, लेकिन जब उसका यहाँ सुकून आ जाए, यहाँ जबर आ जाए, तो फिर उसका इलाज नहीं हो सकता, उसे ऐसे ही छोड़ के उसको घर भेज देंगे। इदगाम की तो जरूरत है, पहला हर्फ जो है वो साकिन हो ना। पहला साकिन हो, दूसरा मुतारिक को। अगर उसमें नहीं है ऐसी सिचुएशन, अगर है तो मर्ज कर दें, पहला साकिन और दूसरा मुतारिक है तो मर्ज कर दें। अगर नहीं है ऐसी सिचुएशन तो बनाएं। बनाने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो उसको पिछले हर्फ पे ट्रांसफर कर दें, अगर वो खाली है तो वहां ट्रांसफर कर दें हरकत को, तो उसको खाली कर लें। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर पीछे खाली नहीं है, पीछे भी मुतारिक आ रहा है, तो उसको जबरदस्ती गिरा दें। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं ना, जी। मदीना बुक्स में भी है, और ये होता है फायदा पहले पढ़ने का। तो हाँ, ये चीजें बहुत अगर अच्छी कॉम्बिनेशन है ना, हम लोग वो भी पढ़ लें और ये भी पढ़ लें ये तो भी बहुत पढ़ अच्छा रहे है। हैं, और हमें कुछ ना कुछ पहले से पता होता है, वरना तो सर से चीजें गुजरती हैं। यही चीजें अगर किसी और को पढ़ाई जाए ना तो पागल हो जाएंगे वो।
لیکن چونکہ ہم پہلے کر چکے ہیں اور دوسرے طریقے سے کیا ہے، اب اس طریقے سے کر رہے ہیں. اب یہ طریقہ کتنا اچھا طریقے سے بتایا انہوں نے، ایک ایک چیز کو بتایا. مثل اول، مثل ثانی. مثل اول کیا ہے؟ دو لیٹر ایک جیسے ہیں، جیسے میم ہے اور دال ہے، ٹھیک ہے. اس میں یہ والا مثل اول کہہ رہے ہیں، یہ والا مثل ثانی کہہ رہے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے، اگر یہ والی سچویشن ہے تو یہ تو ون ون سچویشن ہے نا. اس کو ہم کیا کریں گے، آپ اس کو مرج کر دیں گے، دال پہ تشدید ڈال کے، اور اس کو آپ اوپر زبر دے دیں گے، ٹھیک ہے. پیچھے میم لگا دیں گے، میم پہ بھی ظاہر زبر ہی ہوگی، مدہ بن جائے گا. اگر یہ والی جیسے ماضی ہے میم دال، اب یہ والی سچویشن ایسی نہیں ہے نا کہ آئیڈیل سچویشن ہو، تو پھر ہم کیا کریں گے اس میں، جیسے ماضی بنانا ہے ہم تو مدہ دا بنے گا نا. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو خالی کرنا ہے، تو اس کی زبردستی گرا دیں گے اور یہاں سکون پیدا کر لیں گے، آئیڈیل سچویشن بنا لیں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح کیا ہوتا ہے، ایک مثال ابھی آئے گی جس میں آپ کا کیا ہوگا، یہاں پہ تو دونوں حرکات ہوں گی لیکن پیچھے والے پہ ساکن ہوگا. تو پھر اس کی حرکت کو ہم پیچھے ٹرانسفر کریں گے، اس کو خالی کریں گے اور اس کی آئیڈیل سچویشن بنا لیں گے. تو آپ کو یا تو بنی بنائی ملے گی، ٹھیک ہے، یا آپ اس کو تو آپ آرام سے بنا لیں گے. کبھی آپ کو گرانا پڑے گا، کبھی آپ کو ٹرانسفر کرنا پڑے گا. یہ تو دو طریقے ہیں. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی سکون بعد میں آ رہا ہے، یہ سارے طریقے آئیں گے گردان میں، تو پہلے حرکت آ رہی ہے تو پھر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں. تو یہ چار اس میں ہے. تو اب یہ مثالوں سے کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. آگے پڑھیے. مضاعف ثلاثی مجرد کے 3 ابواب سے استعمال ہوتا ہے. نمبر 1 نصرہ ینصرو، ہاں، مثلا درارہ یدررو سے درہ یدرو. اب دیکھیں اس میں یہ ہے نا ٹرانسفر والا قاعدہ، یہاں آ گیا اور یہاں سکون آ گیا، پیچھے چلا گیا، تب آپ کا کیا ہو گیا، آپ نے اس کو ایڈجسٹریشن بنا کے مرج کر دیا. اور پہلے والے میں بھی را کی حرکت کو ہم نے یہاں پہ گرا دیا، یہاں پہ زبردستی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے. درہ سے، ہاں درارہ سے درہ ہو گیا. ماضی میں آپ کو زبردستی کرنی پڑے گی سب میں، اس میں آپ کو. ہاں، دوسرا والا نمبر 2 ضربہ یضربو، مثلا فرارا یفررو سے فرا یفرو. فرا بن گیا اس سے، اور اس سے یا پھر بن گیا. آگے نمبر 3 سمع یسمعو، مثلا مسیسا یمسسو سے مسا یمسو. اچھا، اب اس کو آپ نے زبردستی گرایا، ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی آپ نے جو زبردستی گرایا تھا، یہاں بھی زبردستی گرایا تھا. تو آپ کا یہ کیا بن جائے گا، زبردستی گرائیں گے تو سین اور سین مرج ہو جائے گا، مسا بن جائے گا. اور اس میں کیا ہوگا، اس میں ٹرانسفر ہوگا اور پیچھے زبر آ جائے گی، آگے سکون آ جائے گا. تو یہ کیا بن جائے گا، یا مسو، مضارع میں پیشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا مسو بن جائے گا. اچھا جی، آگے کیا ہے، مثالیں دیکھ لیں. درارا باب نصرہ سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. صبح صبح بہت پیاری دعا آ گئی. چلیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ 3 دفعہ صبح صبح پڑھ لیا کریں، 3 بار شام کو پڑھ لیا کریں، بہت اچھی دعا ہے. صبح شام کی دعا میں نا. ہاں، بسم اللہ الذی، اس میں بسم اللہ کیا ہے آپ کو پتا ہے، بی حرف جر ہے، اسم مجرور ہے، مضاف بھی ہے، اور یہ مجرور ہو رہا ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ پورا مرکب جاری بن گیا، یہ تو پتہ ہے نا آپ کو، جی بی سے ملٹیپلائی ہو کے اندر کچھ بھی ہوگا ملٹیپلائی ہوگا. اچھا، اب یہ خبر مقدم ہی بنے گی ظاہر جملے میں، ہے نا. شروع میں مرکب جاری آ جائے تو خبر مقدم. بالکل. اللہ زی اسم موصول ہے، آگے اس کا صلہ آئے گا، ٹھیک ہے. لا یدر، صلہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا جملہ کے لیے ہی ہوتا ہے. تو یدر لا یدر، نہیں نقصان پہنچا، کیا ہے، لا یدر مع اسمہ شیء فی الارض، ساتھ اس کے نام کے کوئی چیز بھی فی الارض نہیں نقصان پہنچاتی، ساتھ اس کے نام کے، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ، شیء فی الارض ولا فی السماء. یہاں سے نیا جملہ شروع ہوگا، وہ کے بعد اس سے پہلے آپ کا پورا ایک ہی جملہ ہے. تو یہ آپ کا فعل ہو گیا. اب اس کے اندر جو ہے ہوا ضمیر ہے وہ الذی کی طرف جا رہی ہے، صحیح ہے.
اور یہ کیا ہے آپ کا ظرف ہے، مضاف الیہ ہے، اور پھر یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، تو یہ پورا کیا بن گیا، اس فعل کا متعلق بن گیا۔ یہ جب آتے ہیں نا تو یہ بھی مرکب جاری کی طرح شبہ جملے میں استعمال ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے نا، یہ بھی شبہ جملہ ہے، یہ بھی شبہ جملہ ہے۔ تو جملہ یہ آپ کا مبتدا کے طور پہ، یہ مبتدا خبر کے مقدم کے طور پہ آ رہا تھا یہ، اور کیونکہ اس کو ہم مبتدا تو بنا نہیں سکتے تو خبر مقدم بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ والا جو ہے آپ کا یہ خبر مقدم بن گیا، تو اللہ اسم موصول اور اس کا صلہ جو بنائیں گے وہ مل کے تو کیا بن جائے گا، اس کا مبتدا بن جائے گا۔ اسم موصول اور صلہ کچھ بھی بن سکتے ہیں، کچھ بھی بن سکتے ہیں۔ الذی لا یضر مع اسمی، تو یہ متعلق ہو گیا، شیء خبر بن گیا، کس کی خبر بن گیا، فاعل بنے گا، فاعل بنے گا، خبر نہیں بنے گا، کیونکہ یہ فعل ہے، اس کا فاعل ہے۔ یہ اس طرح دیکھنا پڑتا ہے، فاعل اتنی آگے بھی آ سکتا ہے، یہ متعلق ہے۔ اب اس کا ہم ہوا ضمیر نہیں بنائیں گے، فاعل جو میں نے بنایا نا، یہ نہیں بنائیں گے۔ ویسے اس میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو اس کے مطابق ہو، تو وہ اس میں ہوا ضمیر ہے جو اس کا ان دونوں کو جوڑتی ہے، لیکن فاعل جو ہے وہ شیئن بن رہا ہے۔ نہیں نقصان پہنچا سکتی، کیا کون نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی بھی چیز، تو یہ فاعل ہے، میننگ سے بھی پتہ چلانا ہوتا ہے۔ فی الارض ولا فی السماء، تو یہ آپ کا کیا بن جائے گا، فی الارض ولا فی السماء۔ جب لا آتا ہے نا 2 دفعہ، تو اب یہاں پہ تو خیر ایک ہی دفعہ آ رہا ہے، ولا فی السماء، تو یہ آپ کا کیا بن جائے گا، فی سے الارضی اور ولا فی السماء، اس کو فی سے ملٹیپلائی کریں تو یہ مرکب جاری اگین بن گیا۔ بہرحال یہ پورا آپ کا کیا بنے گا، یہاں سے لا سے لے کے یہ پورا صلہ بنے گا، اور صلہ بن کے فعل، فاعل، مفعول، متعلق جو بھی اس کے اندر آ رہے ہیں، اس کو آپ مفعولن فیہ بھی کہہ سکتے ہیں نا، یہ مفعولن، میں یہی پوچھنے لگی تھی، ظرف تو مفعولن فی ہی بنتے ہیں نا جملہ فعلیہ میں؟ ہاں بنتے ہیں، مفعولن فیہ بنتے ہیں، تو یہ مفعولن فیہ بن گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ منصوب ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کا یہ فاعل بن گیا، اور یہ اس کا متعلق بن گیا، اور باقی تو فعل اور فاعل ہے، تو یہ جملہ نافیہ بنا ہے نا۔ اچھا، اب یہ جملہ پورا صلہ بن گیا۔ اب اسم موصول اور صلہ دونوں مل کے کیا بن رہے ہیں، کیا بنیں گے، اللہ زی کو ہم اسم موصول بھی کہیں گے اور مبتدا بھی کہیں گے، اور یہ اکیلا مبتدا نہیں بنتا، آپ کو پتہ ہے نا، اسم موصول اکیلا کچھ نہیں بنتا، وہ آگے والے صلے سے مل کے بنتا ہے۔ تو اب آپ کا اسم موصول اور یہ پورا صلہ اس کا مل کے یہ مبتدا بن گئے، اور یہ خبر بن گئے۔ اس طرح یہ جملہ کون سا بنا، اسمیہ بنا، خبر اور مبتدا مل کے، خبر کچھ بھی ہو سکتی ہے جملہ فعلیہ بن کے۔ تو اس طرح ہم انالیسس کریں گے نا، تو ہمیں پڑھنے میں دلچسپی پیدا ہوگی اور سمجھنے میں، اور یہ ساری بہت مزہ دیتی چیزیں۔ یہ جیسے آپ سوال سولو کرتے ہیں الجبرا کے یا پھر ٹریگنومیٹری اور یہ میتھ وغیرہ کے، تو بالکل اسی طرح سے یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ السمیع العلیم، واو کے بعد ہمیشہ نیا جملہ آتا ہے، بیچ میں کوئی اور ایسی بات نہیں آئی تھی، یہ جملہ نہیں تھا، یہ تو مرکب جاری تھا نا، تو یہ اس جملہ تو نہیں کہہ سکتے، جملہ بعد میں یہ والا آیا ہے ابھی۔ ہوا مبتدا، السمیع خبر نمبر 1، علیم خبر نمبر 2، تو یہ الگ سے ایک جملہ اس میں بن گیا۔ اب یہ جملہ اسمیہ کیا کہلائے گا، معطوف، ٹھیک ہے، اور یہ حرف عطف ہے۔ اور پچھلا جملہ کیا کہلائے گا، جملہ اسمیہ کیا کہلائے گا جو پہلے ہم نے بنایا یہاں سے لے کے، معطوف علیہ، معطوف، تو معطوف علیہ اور معطوف مل کے کیا بن گئے، مرکب عطفی۔ یعنی مرکب عطفی بنائیں یا نہ بنائیں، یہ اس کے اوپر معطوف ہو رہا ہے، وہ معطوف علیہ ہی ہے، اور یہ معطوف ہے۔ معطوف ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اگر واو کر کے آگے پھر اور جملے آتے جائیں تو وہ سارے کے سارے بھی پہلے والے پہ معطوف علیہ پہ معطوف ہو جاتے ہیں، صحیح ہے؟ تو اتنا ہی کافی ہے، یہ نہیں کہنا ضروری کہ یہ مرکب عطفی بن گئے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا، بنا بھی سکتے ہیں، کیونکہ جو حرف عطف ہوتا ہے نا، اس کے بعد جو چیز ہوتی ہے وہی پیچھے بھی ہوتی ہے، پیچھے بھی جملہ اسمیہ آ رہا ہے، آگے بھی جملہ اسمیہ آ رہا ہے، اگر پیچھے جملہ فعلیہ ہوتا تو ادھر بھی جملہ فعلیہ ہوتا، ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے ہوتا ہے، پیچھے نون ہوگا تو آگے بھی نون نہیں ہوگا، جیسے لا حول ولا قوت نا،
अब उसमें भी देख लें इसी तरह वो जब आती है तो वो जो पीछे होता है वही, वहां पे कुव्वत क्या है, मंसूब इसम है, तो आगे भी वो मंसूब इसम ही आ रहा है और इसम ही आ रहा है। तो इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं अतफ मातुफ। अच्छा, यद उल यतीम, यदु उल यतीम, सॉरी, यदु उल यतीम क्या है, दा आ यदु उ, ठीक है। अब दा कैसे बना, दाल ऐन ऐन, हमने तो मुजारे भी बनाना है, पहले माजी बनाते हैं। इसको जबरदस्ती गिराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, रूट वर्ड यही है ना। अच्छा, ये बन जाएगा आपका मर्ज होके दा, दा, उससे मुजारे क्या बन गया, यदु। अब यदु कैसे बने, किस वजन पे है, कौन से बाब से है, यफ, बाब नसर से, यफ उलू, ऐसे ही है ना। जी। अच्छा, अब इसमें आप डालें अपना रूट वर्ड, तो क्या बनता है, या पे जबर, ये तो अरफिलत है, ये मुजारे ऐसी जगह। फा में आपका दाल पे पेश, ऐन पे क्या है, दम्मा है, यंसुरू है ना, तो जो है वो जज़म आएगा ना दाल के ऊपर। हाँ जज़म और आएगा। दो दफा आइन आएगा, यद उ, नहीं, अभी तो यफ उलू है ना, ऐसे ही जी बनाना ना, तो यद ठीक, उ, उ, दो आ जाएंगे ना। अब आप देखें आपकी आइडियल सिचुएशन नहीं बन रही, तो अब आपने क्या करना है, ये सुकून है तो इसको आप चेंज करेंगे दम्मे में, इसको जम्मे में चेंज करेंगे इसमें, तो ये आपका क्या हो गया, यद उ हो जाएगा। हाँ यही हो जाएगा आपका। ये पेश है, यहाँ लगा दें और इनको मर्ज करके, ठीक है, ये बना दें, सही है। तो ये मैं बता रही हूँ किस तरह बनता है, और फिर इसके अंदर ही फाइल है, ठीक है ना। और अल यतीमा क्या बनेगा, ये मफूल बन जाएगा, फेल फाइल और मफूल मिलकर क्या बन गया, जुमला फेलिया बन गया। वो धक्के देता है यतीम को। वला यहुद्दू अला ताम, ये क्या है, हद्दा यहुद्दू, तो इसमें भी हा दाल दाल होगा, और फिर यहुद्दू, यहुद्दू में क्या होगा, बिल्कुल इसी तरह ही बनेगा, क्योंकि सेम बाब है ना, नसर आई है। वही बात है। हाँ, तो सेम ऐसे ही बनेगा। उसके बाद तब्बत यदा अबी लहबे व तब, तब्बत कैसे बने, अभी ये आपका माजी है, ठीक है ना, इसको देख लेते हैं। जी। इसमें आपका माजी है, तो ये वो वाला सीगा है ना, हाँ, ये आपका सीगा है चौथा वाला, सही है ना। जी। चौथे वाले सीगे में क्या बनता है, पहले वाले सीगे में तो तब्बा बन गया ना, जी। तो चौथे वाले सीगे में क्या बना, तब्बा हमारा शुरू में ही बन गया था, ठीक है, ये तब्बा बन गया था, फिर तब्बा, फिर तब्बू, जो भी बनाना है, फिर तब्बत। अब देखें जबर के बाद सुकून आ रहा है ना, तो जी। अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसको, ये अनट्रीटेबल है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ट्रीटमेंट इसका नहीं कर सकते, इसको घर, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यदा, अब इसके अंदर जमीर जो है ना वो, ये जमीर इसकी कहीं नहीं लौटेगी, हाँ, हिया है ना इसके अंदर। हिया है लेकिन लौटेगी नहीं, हाँ। क्योंकि पीछे कुछ है ही नहीं ना, जी जी बिल्कुल। इसका फाइल आगे आ रहा है, तो फाइल जी। वो वाला नहीं बनेगा अभी। असल में ये यदा नहीं था, आपको पता ही है ना, तो ये मुजाफ बन रहा है, ये मुजाफ इलैह बन रहा है, तो इसका नून गिर गया और ये मुजाफ इलैह के तौर पे मजरूर हो गया। अबू अबा अबी होता है ना, तो ये मजरूर है, जी। मुजाफ इलैह है। कुछ समझना है तो पूछ लेना भाई, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितनी समझ आ रही। लहबिम, फिर आपका ये मुजाफ बन रहा है और ये मुजाफ इलैह बन रहा है, तो यदा यानी अबू लहब के दोनों हाथ, ठीक है, व जी। तब्बा, टूट गए, टूट हमारी गए। आगे हाँ, अब ये बद्दुआ जो होती है ये माजी में होती है, लेकिन उसका तर्जुमा, दुआ और बद्दुआ दोनों माजी में होते हैं, लेकिन तर्जुमा जो है ना वो फ्यूचर में करते हैं। अब जजाकल्लाह खैर या जो भी हम कहते हैं जजाकल्लाह खैर, तो उसमें हम क्या करते हैं, माजी में दुआ दे रहे हैं ना, लेकिन उसका तर्जुमा क्या करते हैं, फ्यूचर में करते हैं ना। हाँ, अल्लाह तुम्हें जजाय खैर दे, तो टूट जाए, तो इस तरीके से जो है, दोनों हाथ अबू लहब के। वतब्बा क्यों आया अभी, तब्बा दोबारा आया ना,
माजी, यानी ये किसके लिए आया फिर, वतब्बा, वो जो है ये तो आया ना तनवीन की वजह से इसकी शर्त आ रही है, वो जो हर्फ अतफ ये यहाँ पे वतब्बा, यानी कहा जा रहा है कि टूट गए, ये समझो कि टूट गए, ये मतलब है टूट जाए उसके दोनों हाथ और पता नहीं इसका तर्जुमा क्या आता है वतब्बा का, कोई जल्दी से देख के बता दे ताकि मेरी कंफ्यूजन दूर हो। काफ स्वाद स्वाद, ठीक है। अभी नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़ससी, नहनु मुब्तदा, नकुस्सु से खबर शुरू हो जाएगी, फेल आ गया, और इसमें नकुस्सु कैसे बनेगा, ये भी बाब नसरा से है तो उसी तरह बनेगा, मुज़ारे है, बस नून का फर्क है ना, और कुछ नहीं है। और इसका भी इलाज हुआ है, इसका भी ट्रीटमेंट हुआ है, इसकी भी सर्जरी हुई है। अलैका ये मुतालिक बन जाएगा फेल का, और अहसना क्या है, ये आपका मुरकब तौसीफी बन के मफूल बन जाएगा। मुजाफ के ऊपर आपकी जो है ना मफूल की हरकत जाहिर हो रही है, तो मुरकब इजाफी बन के नहनु नकुस्सु मैम ये अलैका तर्जुमे अहसन। में ये तर्जुमे में ऐसे आ रहा है, टूट गए दोनों हाथ अबू लहब के और वो हलाक हुआ। हलाक हुआ, लफ्जी में भी यही आ रहा है और जो इसमें हाँ मुहावरा बस ठीक तर्जुमे है, में भी यही आ हाँ रहा है। बस ठीक है, सही है, सही, तब्बा में भी है, सही। अच्छा जी, और वैसे ता बाबा का क्या मतलब है, हलाक होना, टूटना, टूटना हलाक होना एक ही बात है ना, सही है। जी जी। चले टूट जैसे गया हम तो फेल में ही हम इदगाम करते हैं, इसमें नहीं करते क्या, जैसे क़ससी है ना। हाँ नहीं इसमें नहीं किया ना, कसस में नहीं हाँ किया, कसस हाँ सुन तो होता है ना असल में, जरूरत पड़े तो करते हैं, क्यों नहीं करते, करते हैं, इसमें भी करते हैं, लेकिन अभी जरूरत नहीं है ना, कसस सुन होता है ना, तो ये कसस सुन होता है, तो ये जब अलिफ नाम डाल तो अलकसस हो गया, और अलकससी हो गई, यसु हो जाएगा, तो इसमें करते हैं, लेकिन सिचुएशन नहीं आई ना अभी। अब माजी में जरूरत नहीं है, कसस से सी लिख दिया, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो कर भी लेते हैं। अभी तो हम फेल पढ़े हैं, उस फेल पे रहें, जब जरूरत होगी तो फिर हम उसको इंशाल्लाह करेंगे, सही है। ओके। कहीं पे आ जाएगी कोई मिसाल इसमें की भी। यौमा यफिरुल मर्रु, अब ये भी ये बाप दौरा बा है, ये गर्दान जो है ना ये वाली, ये बहुत तंग करती है, इसमें तब्दीली होती है ज्यादा। यौमा यफिरुल मर्रु मिन अखी, ठीक है, ये तो आपको पता है कौन सी सूरत से, वह उम्मी ही वह अबी ही वह साहिबती ही वह बनी, तो यौमा जिस दिन, या फिर फेल है तो ये इसका जबर वाला आ रहा है, तो ये मफूलन फी बन जाएगा शुरू में, और अलमरु ये फाइल बन जाएगा, मिन अखी, और ये सारा आगे वाला जो है ये मल्टीप्लाई होगा मिन से, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, मुतल्लिक के फेल बन जाएगा। तो फेल अपने फाइल और मफूलन फी ही और मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया। उसके बाद वलक़द खलक़ना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्यामिन वमा मस्सना, इसका ट्रीटमेंट करना है, और तो कोई है ही नहीं है ना। अच्छा, मिन मिन लुगूबी, अब ये कौन सी आयत है, कहाँ की आयत है, और बताते कि पैदा किया हमने जमीन व आसमान को, या बनाया, वमा बैना, और जो उनके दरमियान है 7 दिन में, वमा मस्सना मिनल लुगूब, और हम नहीं छुआ हमको किसने, थकावट ने। तो अब यहाँ पर क्या है, मस्सना, तो मस्सना तो बहुत ही आसान है ना, आगे बस आपने क्या करना है, इसको करके देख लेते हैं। माजी है ये, मीम मीम सीन सीन जबर हो जाएगी, और ये आपका मस्सा बन जाएगा, और आगे फिर आप क्या करेंगे, मस्सा के बाद जमीर लगा दें, तो ना जमीर से पहले जबर आ रही है, तो अब ये क्या बनेगी, ना जमीर मफूल या फाइल, फाइल मफूल बनेगी, नहीं छुआ फाइल। हम सॉरी फाइल बनेगी मैम। को, मैं तर्जुमा कर रही साकिन हूँ। साकिन आता तो फिर वो नहीं, साकिन आता ना, साकिन तो वो पहले है, बाद में जबर है ना, तो जी ये जी ना जी जमीर का तर्जुमा क्या है, और नहीं छुआ हमको, हमको को में तर्जुमा आ रहा है ना, जी
तो मफूल बनेगी ना, तो मफूल बनेगी ना मैम? जी मफूल जी, मैं बनेगी। पहले यही कह रही थी मफूल जबर आए ना बनने तो की मफूल जरूरत। बनता है, ठीक है। जी और सुकून तो अंदर आ गया ना, आखिरी आखिरी हरकत तो जबर ही है ना, तो जबर से ना जमीन से पहले जबर आ रही, मिल लो बिन। अब ये असल में क्या था, मिल लो बिन, और नहीं छुआ हमको किसी भी अब देखें मिन के बाद नकरा इसम आ जाए, बहुत ज्यादा कुरान मजीद में इस्तेमाल होता है। यानी हमें थोड़ी सी भी थकावट या थकावट की कोई किस्म होती है ना, उसने नहीं छुआ, नकारत में इजाफा हो जाता है। जरा सी भी थकावट नहीं छुआ, यानी हमने इतना बड़ा काम कर दिया, जमीन व आसमान बनाए, और कितने आसमान और कितनी जमीनें हैं, जमीनें भी सात ही हैं, आसमान भी सात ही हैं, फिर उनके दरमियान जितनी चीजें हैं 7 दिनों में बनाए अल्लाह ताला, 6 दिनों में बनाए, सॉरी फिसित्तति अय्याम में 6 दिनों में बनाए। वमा मस्सना, हम जरा सा काम करते हैं। मेरे मेहमान आए थे सैटरडे को, और मैं अभी तक मेरी बॉडी टूट रही। माशाल्लाह बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, वो सारे मिक्स हो के, तो सारे हैं, तो वो थकावट जो होती है ना फिर वो जाती नहीं है, क्योंकि कभी इतना किया नहीं ना। मेरा काम यही होता है, बस पढ़ाने पढ़ने का इजी इजी काम होते हैं, फिर एक्स्ट्रा करना पड़ता है तो बॉडी फिर हर्ट होती है। अच्छा अब आगे क्या है, हा मैम बाबा। की जरा दोबारा बता दीजिएगा कि मिन के बाद नकरा इसम आए तो हाँ, उसकी नकारत में इजाफा हो जाता है, नकार- नकारत में इजाफा हो जाता है, यानी उसमें बहुत ज्यादा नकारत आ जाती है। नकारत का मतलब समझते हैं ना, उमूमियत, नहीं। अच्छा उमूम अच्छा का फायदा देता है ना। तनवीन किसका फायदा देता है, कोई आम चीज होती है तो वो नकरा में आती है ना। जी, यानी वो जब बहुत खास आम हो होती है तो जाती अलिफ लाम होता है, तो उसकी नकारत में मजीद इजाफा हो गया, यानी जरा सी भी, है। ठीक है ना। अब ये आपको कुरान मजीद में जो जो मिसालें आएंगी मैं बताऊंगी फिर, ठीक है। अच्छा उसके बाद अहब्बा, अब ये बाब फाल आ गया, थोड़ा सी चेंजिंग आ गई, अब थोड़ा सा मुश्किल काम आ गया, अभी ट्रीटमेंट जरा सा सर्जरी का मुश्किल हो गई है। तो अभी हम देखते हैं इसको क्या करना है, मुश्किल नहीं है इसका। हा बाबा को आपने अफला के वजन पे डालना है, वही 4 तरीके हैं, वही करने हैं, और क्या है। अफला में जब डालेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अहब्बा। फिर ये दोनों जो है ना, हा ये आपके आ जाएंगे, इसको ट्रांसफर ही करेंगे, मैं डाल के बता देती हूँ। आ और हा, यहाँ पे सुकून आएगा। अच्छा यहाँ पे बा आएगी, बा पे जबर आएगी, और फिर यहाँ पे बा आएगी। अब बस इसको मर्ज करना है, इसको ट्रांसफर कर दें, ठीक है। ये जबर हो जाएगा और यहाँ सुकून आ जाएगा, इनको मर्ज करें, हब्बा बन। युहिब्बु कैसे बना, इसमें भी आपका ट्रीटमेंट हुआ। जब भी देखे ना तशदीद आ रही, इसको मतलब ट्रीटमेंट दिया गया है, ठीक है। जी तो युहिब्बु बना लें, फिर युहिब्बु से जो मर्जी है पूरी गर्दान बना लें, युहिब्बु ही मुश्किल है। तो ये आपका बाब इफ़ाल है, तो उसका क्या होगा, युफ़इलु होगा ना। तो युफ़इलु के वजन पे तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है, बस आपने मर्जी करना। युफ़इलु, और इसको यू बताएं मुझे साथ साथ क्या करना जी जी, उसके है। बाद युफ, हा। हाँ उसके बाद ये फा कलमा है ना, रूट जी वर्ड हा, पहले लिख लिया करेंगे, अगर मुश्किल हो ना तो रूट वर्ड पहले हा लिख लें। बाबा अब फा कलमे पे आपका हा आ जाएगा, उस पर आ सुकून आ जाएगा। जाएगा, सुकून आ जाएगा, और यहाँ पे बा के नीचे जेर योह आएगी। बीबू हो जाएगा, योह बीबू। युहिब्बु से युहिब्बु। हाँ हरकत वही लगा दें, पैसे वजन पे डली हुई है वही डाल दें, हमेशा यही तरीका होता है। शुरू शुरू में बच्चों को बहुत मुश्किल होता है ये समझाना, लेकिन एक दफा जब उनको समझ आ जाती है ना। अच्छा अब क्या करना है हमने, यहाँ पे आपका यू हिब्बू, बा के नीचे, वो यू, हा के नीचे चला जाएगा। जहाँ पे क्या था हमारा, ये जगह में सुकून बच्चे हाँ युफ सुकून। इलू, यहाँ पे जेर था ना। जी अच्छा अब हमने क्या करना है, इस जेर को पीछे करना है, ट्रांसफर का कायदा। ये जेर हम्म, यहाँ आ जाएगी, यहाँ सुकून आ जाएगा, मर्ज कर दें और ये हिब्बू बन जाएगा। एहबाबन, आप जब बाब इफ़ाल पे इसको डालेंगे तो एहबाबन भी बन जाएगा, वो भी मुश्किल नहीं है। इफ़ालन के वजन पे सिर्फ डालना है आपको। अब तो ये चीजें ना आपको आ जानी चाहिए, वजन पे कैसे डालते हैं। इफ़ालन के वजन पे, वैसे तो इफ़ालन होता है, लेकिन यहाँ इफ़ालन के वजन पे डालना, या फिर आप इफ़ालन पे डाल लें और अलिफ बाद में 2 जबर लगा लें, इसे कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा जेर हा, हा पे सुकून, और यहाँ बा, बा, बा पे बा आगे पे बा पे जगह। जबर अलिफ,
आगे। और एक और बा आएगी और फिर अलिफ आएगा, और 2 ये तनवीन आएंगे। ये बाबा कोई चेंजिंग नहीं हुई, बस वही आपने जो 4 कह दिया। सबसे इंटरेस्टिंग मुझे यही लगता है, मजे का लगता है। महमूज भी अच्छा है, उसमें भी बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देता। और वो जो आगे हम पढ़ेंगे ना मोहतल, वो भी मजे के हैं सारे, बस इंटरेस्ट होना चाहिए। अब आ गया आपका ये वाला हा जीम जीम, ठीक है ना। अब ये हाजा कैसे बना, ये बा मुफाला से है ना, तो फाला के वजन पे आपको डालना पड़ेगा। जो बाब होता है उसी के वजन पे डालते हैं, तो फाला के वजन पे डालेंगे तो हा जजा जबर अलिफ, और यहाँ पे जीम है और जीम है, जीम जीम को। अच्छा मर्ज कैसे करेंगे दोनों को, इस पे भी जबर है, इस पे भी जबर है, और पीछे क्या है आपका अलिफ है, और उससे पहले क्या है आपका जबर है, जबर है। यही है ना फा अला। तो अभी जी। आपने क्या करना है, इस पे डाल सकते हैं, नहीं, अगर इस पे डालेंगे तो ये तो हर वो बन जाएगा, हमजा बन जाएगा ना, जी। गिरा तो देंगे हरकत। बता देंगे। जबरदस्ती गिराएंगे, ठीक है। हम्म, तो ये गिराने से फिर ये मर्ज हो जाएगा, तो हाजा बन जाएगा। इस पे नहीं डालना, क्योंकि सुकून तो होता है इस पे, लेकिन इस पे डालने से ये हमजा बन जाएगा, तो फिर झटका देना पड़ेगा। तो हमने सिर्फ मर्ज करना है। बाकी युहाजू जो है ये फिर उसी किस वजन पे बनेगा, युफा इलू के वजन पे। अब इसमें क्या तब्दीली आ रही है, आप मुझे बता दें, यहीं से बता दें युफा इलू में क्या तब्दीली आएगी। अगर आपने इसमें तब्दीली कर ली तो उसमें भी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जीम आएगा, जीम के नीचे जेर आएगा। यू हाजिजू हो जाएगा। जी। ये 2 जीम इकट्ठे है ना, यहाँ पे एक जेर वाला और एक ये है, तो इन दोनों को इसमें मर्ज भी कर जीम की जबरदस्ती गिराएंगे, इसमें भी जी, इसमें जबरदस्ती जबरदस्ती गिराएंगे। और मुहाबत, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं होगी, इसमें जरा मद व दारी देख लेते हैं। तो इसका क्या होता है, मुफा मुफा अला, सब पे जबर आएगी। मुफा अला में याद रखें, सब पे सिर्फ पहले वाले कलमे पे पेश आती है, बाकी सब पे जबर आती है। मुफा अला तुन। अच्छा अब मीम की जगह क्या आ गया, मीम ही आ जाएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा लेटर है, रूट वर्ड नहीं है। फा की जगह हमारा हा आ जाएगा, हा पे हरकत अलिफ आ जाएगी। फिर यहाँ पे जीम है, जीम पे जबर, और फिर जीम आ रहा है, एक और जीम, उस पे भी जबर, ठीक है। और फिर गोलता आ रही है, गोलता तो एक्स्ट्रा है, उस पे 2 पेश है। तो ये दोनों को मर्ज करेंगे जबरदस्ती, तो क्या बन जाएगा, ये तशदीद आ जाएगी ना, सही है। जी। लेकिन तशदीद कैसे आया? मैं बताती हूँ ना, तो हमने पहले मुहावत। जीम को साकिन करा ना, तो अलिफ मत के बाद जीम साकिन आ रहा है, तो फिर हम इसको मद में तब्दील कर हाँ देंगे। वो तो जबरदस्ती गिराएंगे ना, वो तो शुरू से गिराते आ रहे हैं ना, तो जबरदस्ती गिराना पड़ेगा, क्योंकि इधर तो ट्रांसफर नहीं कर सकते ना। जी। तो ये आपका इसके ऊपर तशदीद आ गई। अच्छा उसके बाद ये आपका गोलता आ गया। अच्छा तो ये आपका बन गया मुहाजतुन, ठीक है। अब आपका यहाँ पे मद क्यों आ रही है, जैसे आप देखें अद्दौलीन होता है ना, अब यहाँ पे आप मुझे बताएं क्यों मद आती है, इधर आती है कि नहीं आती, यहाँ पे आती है ना। आती है, 3 लेटर हैं अलिफ के हाँ बाद, साकिन है के बाद। हाँ, नहीं वो कोई बात नहीं है, वो उसकी वजह वो नहीं है, वो कोई जमा अच्छा। मुकस्सर थोड़ी है। नहीं, मद लेटर के बाद अगर साकिन लेटर आए ना, हाँ तो फिर मदा हो जाता है। मद्दा हो जाता है ना, यानी आपका यहाँ पे भी मद्दे वो हो रही है ना, क्या मुकस्सर लाजिम, हाँ मद लाजिम हो जाएगा। लाजिम हो रही है, यानी लाजिम आपने देनी है। अब वैसे तो ये होता है कि हमजा के बाद अगर हो ना, हमजा के बाद, ठीक है, हमजा के बाद अगर इस तरह आए, या हमजा उस लेटर के अंदर आए या बाद वाले में आ जाए, बहरहाल वो यहाँ तो पे हाँ, ये रूल है ना, क्या रूल है इसमें, रूल आप समझा दें तजवीद का। इसमें ये शायद है ना पहले कि आए या बाद में आए, दोनों तरफ। नहीं, इसमें हमने जब वो किया ना, देखिए 2 जीम थे ना, फिर हमने इसको हाँ इदगाम किया तो मुझे समझ आ गया, मुझे हाँ, समझाने दे, मुझे पहला समझ पहला आ लेटर गई। साकिन मदे मदे तबई के बाद लाजिम, क्या होती है, शुरू वाली मद क्या होती है, उसको क्या हाँ कहते जी, हैं, मदे मद तबई तबई के के बाद बाद अगर अगर 2 लेटर आए एक जैसे,
تو پھر یا پھر تشدید والا لیٹر آ جائے تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے مد پیدا ہوتی ہے. جب بھی آپ کی مد آتی ہے نا, مدے کیا طبعی کہتے ہیں نا, تو جو پہلی جی 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 الف اور واو یا سے جو مدہ ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں, اس کے بعد اگر آپ مد طبعی کہتے ہیں جی. مد طبعی کہتے ہیں, اس کے بعد اگر آپ کا آ جائے تو آپ دیکھیں اس میں دو ہیں, دو لیٹر بھی ہیں اور ایک سکون ہے اور ایک حرکت ہے. محبت تو اس میں آپ کو لازم مد کرنی ہے, 6 حرکہ اس میں لازم آپ کو کھینچنا ہے, کیونکہ یہ بڑی جب تشدید آتی ہے نا, میں نے اس کی مثال بھی آپ کو دی ہے نا, تو یہ جو ہوتا ہے نا اس میں بہت زیادہ وہ ہوتا ہے. اچھا میم جو پھر مظاہرے میں آ رہا ہے جیم پہ شد آ رہا ہے تو اس کے الف پہ تو نہیں مد آئی نا. نہیں, میں اس الف کی یہ مد دیکھیں, ہا جو ہے نا, ہا پہ زبر آ رہی ہے, آگے الف آ رہا ہے, تو مد تو پیدا ہو رہی ہے نا. جی نہیں وہی بالکل. تو میں حروف پوچھی, تو مظاہرے میں بھی تو ایسے ہی ہے, یوہاج یوہاجو, اس کے آگے بھی جیم شد والا ہے کہاں گیا, مضارع میں جو, ہاں یوہاجو, تو اس پہ بھی مد آئے گی. نہیں اس پہ نہیں آئے گی, اس پہ نہیں آئے کیونکہ وہ فعل ہے نا, فعل پہ نہیں آئے صحیح گی. میم, یہ اسم پہ آئے گی. صحیح صحیح ہاں, سمجھ آ اسم گئی پہ آ میم. گیا, یہ تو آپ کے ٹھیک. اس کے رول ہے نا. اچھا اس کے بعد فعل پہ نہیں آئے گی, ایسے تو ماضی میں بھی پھر آ سکتی تھی نا, ٹھیک ہے. فعل پہ مد نہیں آتی, کبھی دیکھی آپ نے مد فعل پہ؟ نہیں. لیکن جیسے جیسے جی میم پڑھتے ہو گیا ہیں, جیسے جیسے کلیئر مجھے, پڑھتے بس ہیں, وہ دماغ اسم اور فعل آپ میں لوگ کنفیوز سوچتے ہو ہیں نا گئی تو تھی. پھر نئی نئی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں, ہے نا. اب ویسے ہم غور کام کرتے ہیں, جب ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں تو پھر چیزوں میں اور زیادہ ہمارا وہ ہوتا ہے, علم میں اضافہ ہوتا ہے, باریکیاں سمجھ میں آتی ہیں, ایسا کیوں ہو رہا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے. چلیں تو اب میم اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسم میں مد طبعی کے بعد تشدید آتی ہے اور فعل پر مد نہیں آتی. فعل پر مد آتی ہی نہیں ہے, اور یہاں یہ جو مد وغیرہ ہوتی ہے یہ اسم کا خاصہ ہے, اسم پہ ہی آتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس لیے یہاں پہ نہیں آئی, یہاں بھی نہیں آئی, حالانکہ وہی چیز یہاں بھی ہے وہی ہے, تو ہم اس کو حاجہ نہیں پڑھیں گے, اس کو نہیں کریں گے. مد آتی ہے فعل پہ, وہ آپ جو ڈالتے ہیں نا, کھڑی مد ڈالتے ہیں یا شروع میں ڈالتے ہیں, تو وہ تو اتنی بڑی مد نہیں ہوتی نا جتنی بڑی یہ مد آ رہی ہے تشدید کے ساتھ. اس کو تو آپ وہ تو ایک الف کے برابر ہی مد ہوتی ہے نا, جیسے آپ کھڑی زبر ڈالتے ہیں وہ ڈالتے ہیں, تو وہ تو شروع میں ہی آ جاتی ہے. تو بس اس کا ہی ہے, ٹھیک ہے, جتنا کریں گے اتنا کھلے گا ذہن. اچھا باقی جیم سین اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تجسس کرنا, ٹھیک ہے. لا یتجسس المؤمنون, اب یہ مجھے بتائیں گی فوزیہ, اس کا کریں ذرا انالیسس کریں, بس یہ بتا دیں یہ کیا بن رہا ہے, یہ کیا بن رہا ہے, یہ اس کے بعد پھر میں کرتی ہوں. اچھا تب لا تو حرف نفی ہے نا, جی یہ تجسس کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے نا. مضارع آخر میں پیش آ رہی ہے, جی آپ شروع میں لام جی پہ مضارع ہے. المومنون کیا بنے گا؟ یہ بنے گا مفعول. مفعول کیسے بنے گا؟ زبر آ گئی اس لیے. نہیں نہیں فائل نہیں فائل بنے گا, یہ وہ رفعی فائل حالت ہے. فوزیہ بتائیں گی المومن فائل کیوں بنے گا؟ المومنون کیونکہ یہ اس کی رفعی حالت ہے نا, رفعی حالت ہے, مذکر ہاں, سالم کی, جمع مذکر سالم کی. اور مثنیٰ میں ہمیشہ اس کو دیکھا کریں, جی اس کو مت دیکھا کریں. اب جو مثنیٰ ہوتا ہے اس میں زیر آتی ہے ہمیشہ نون کے نیچے, تو آپ اس کو مجرور کہہ دیں گے. نہیں, مجرور تب ہوگا جب پیچھے واو آئے گی تو رفعی. کتابانی میں کیا ہوتا ہے؟ کتابانی میں آپ کا یہ رفعی حالت ہے یا نصبی جری حالت ہے؟ بتائیں. رفعی. رفعی ہے. کیسے پہچانا ہے آپ نے؟ نون کے نیچے زیر آنے سے, سے الف سے پہچانا ہے نا, نون سے جی پہلے جو الف ہے اس سے پہچانا ہے کہ یہ رفعی حالت ہے. ہاں. جب یہ چینج ہوگی یا میں کتابینی بنے گی تو نصبی جری ہو جائے گی, جی وہاں بھی نون کے نیچے زیر ہی رہے گا, تو اس کو تو اعراب نہیں کہنا نا. پھر نہیں. اعراب کس کو کہنا ہے؟ نون سے پہلے والے حرف کو. اسی طرح جمع میں بھی یہ آپ کی جمع کی علامت ہے. ہم کہتے ہیں وہ جمع کی علامت ہے, وہ تو فاعل ہے, رفعی حالت کو ظاہر کر رہا ہے. وہ جو ہے نا اعراب ہے, یہاں پہ رفعی حالت کو ظاہر کر رہا ہے, فاعل بھی نہیں ہے. فاعل تو ٹوٹل لفظ پورا فاعل ہے,
یہ واو فائل نہیں ہے. یہ فعل میں واو ہو تو وہ فائل ہوتا ہے, اسم میں واو ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ رفعی حالت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. جب یہ یا میں چینج ہو جائے گا تو نسبی جری حالت ہو جائے گی, مومنین جب ہو جائے گا. تو فعل میں اور اسم میں فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. فعل میں جی یہی آپ کا جب آئے گا نا ڈوئل فارم ہوگی, نون کے نیچے زیر آئے گا, تو فعل مضارع ہو, ماضی میں تو خیر نون آتا ہی نہیں, مضارع میں آتا ہے, نون کے نیچے زیر آئے گی تو وہ مثنیٰ ہوگا, فعل کا مثنیٰ ہوگا, اور یہ اسم کا مثنیٰ ہے, اور یہ رفعی حالت ہے. جب یہ چینج ہوگا یا میں کتابینی بنے گا تو یہ اسم کی نسبی ہے جری حالت بن جری جائے حالت. گی, ٹھیک ہے نا. جی ہاں, اور اسی طرح وہ جب یا میں چینج ہوگا تو وہ اس کی اسم کی نسبی جری حالت بن جائے گی. یہ زبر بتا رہا ہے کہ یہ ورڈ جمع ہے, یہ وہ بتا رہا ہے کہ یہ رفعی حالت میں ہے, الف لام بتا رہا ہے یہ معرفہ ہے. بہرحال یہ ابھی کیا بن رہا ہے بتائیں مجھے دوبارہ سے, جملے میں کیا بن رہا ہے؟ یہ جملے میں فائل بن رہا ہے. مفعول تو نہیں بن رہا نا, نہیں اسم ظاہر فائل ہے. واو ہے تو فائل ہی بنے گا, یا ہوگا مومنین ہوگا تو نسبی جری حالت ہوگی, پھر وہ مفعول بنا سکتے ہیں پکا پکا, پھر اس کو فائل نہیں بنا سکتے. اسی طرح کتابینی بھی ہے. تو اب یہ یتجسسو کو ہم کر لیتے ہیں, یہ کس باب سے ہے بتا رہے ہیں, تفاعل سے ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مضارع بنا ہوا ہے, پہلے اس کا ماضی بناتے ہیں, صحیح ہے. تو جی مضارع کیا, ماضی کیسے بنتا ہے؟ تفعل, تفعل. تفعل. یہاں آپ کے فعل بھی سارے پکے ہو جائیں گے انشاءاللہ. تفعل. اب یہ ماضی ہے, اس پہ آپ نے ڈالنا ہے تا, تو ایکسٹرا ہے اس کو ایسے ہی لکھ لیں گے, ٹھیک ہے. فا کی جگہ کیا ڈالیں گے, ماضی جیم. بنا رہے ہیں, فا کی جگہ جیم, جی جیم, اور اس کے پر زبر, اور پھر آگے کیا, سین, سین اور سین. دو عین کے اندر دو سین ہے, صحیح ہے, دو سین ہے عین کے اندر, نہیں جی دو, جی بالکل. ہاں. اب کیا ایک کہنا؟ یہ ایک سین اور بھی آ رہا ہے, جی 3 سین آ رہے ہیں. فوزیہ جی جی سنتی ہوں. تین سین آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ کے, اب ان کا ہم نے کیا کرنا ہے, اب صرف ہم کیا کریں گے, یہ والے دو پہلے والے سین جو ہے نا, انہی جی کو ان ہم کا کیا کر ادغام کریں سکتے ہیں, مرج ہاں کر سکتے ہیں کیونکہ آلریڈی بالکل. مرج ہے تو پتا ہے, وہ تو ایک کنڈیشن یہی ہے اس کی کہ ایک ساکن ہے ایک متحرک ہے. نہیں ہمارے پاس, ہاں ایک پہلا والا ساکن ہے تشدید والا, اور دوسرا والا متحرک ہے, تو ان دونوں کو اس ہم مرج باب میں کر تو لیں. میم پہلے ہی شد ہے نا, تو پہلے ہی جی مرج ہوئے جی ہوئے ہیں. بالکل نہیں, بالکل. میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, کہ یہ کہ آپ اصل تین کس طرح. ہوا کیا ہے نا. تو اس کے صحیح. اندر تشدید کے اندر دو سین ہوتے ہیں نا, ٹھیک. ٹھیک ہے. پہلا والا سکون والا, دوسرا والا یہ, تو یہ دونوں مرج ہو جائیں گے, یہ والا مرج نہیں ہوگا, یہ آپ کا مضارع بن رہا ہے, ماضی بن رہا ہے, یہاں پہ زبر ہے, ماضی بن رہا ہے یہ. تو یہ دونوں مرج ہو جائیں گے, تو یہ ہو جائے گا تا, اور پتہ نہیں شائستہ کا کیا حال ہے, شائستہ ٹھیک ہے دونوں. الحمدللہ سر. مزہ آ رہا ہے. ابھی مزہ نہیں آ رہا. اچھا ابھی نہیں آ رہا, ابھی ابھی اس کے نہیں اوپر آ رہا. تشدید دے دیں گے, اور یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے فوزیہ, لیکن کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے, جو چیزیں آپ کو آ گئی ہیں وہ بھی تو پہلے نہیں آتی تھی نا, بالکل. تو یہ تجسس سا بن گیا. اگر فوزیہ سیکھ سکتی ہے نا, سب سیکھ سکتے ہیں. صحیح بات ہے. تجسسا, اس میں اس کی محنت بھی ہے, لیکن کوئی نہیں. اچھا, تجسسا ہو گیا, یہ ماضی ہو گیا. اب ہم نے بنانا ہے یہ تجسسو, تو وہ بھی ویسے ہی بنے گا, بس آخر میں پیش آئے گی, اور کچھ بھی نہیں ہونا. اسی طرح اس کو کھولیں گے, اسی طرح اس کے پہلے والے دو کو مرج کر دیں گے, تو یہ تجسسو بنا لیں گے. اوکے, اس کو ہم چھوڑتے ہیں. باقی فوزیہ نے کر دیا تھا, مشکل نہیں ہے, بہت ہی آسان ہے. اور قرآن مجید میں قرآن یہ لفظ آتے ہیں سارے, قرآن کی آیت ہے کہ مومن جو ہیں وہ تجسس نہ کریں, ٹھیک ہے. تجسس کی عادت ہوتی ہے ہمیں اپنی فکر نہیں ہوتی, ہمیں دوسروں کی فکر ہوتی ہے کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ عادتیں ابھی ختم کرنی ہے. اچھا جی, تہابا اور ہا بابا. اچھا, یہ باب تفعال سے آ رہا ہے, یہ پہلے بھی ہم نے ہا بابا کیا ہے نا, یہ ثلاثی مجرد سے یوز نہیں ہوتا. حبا
या हिब्बू, बाप दारा बा से आएगा भी तो बहुत ही कम आएगा। ये बाब फाल से आता है, बाब तफाउल से आता है, और भी किसी बाब से आता होगा, अभी हमने दो ही पढ़े हैं। बाब फाल में अहब्बा पढ़ा था, ये सबसे ज्यादा अहब्बा ही यूज होता है, बाब फाल से यूज हो रहा होता है। बहरहाल यहाँ पे ये एक दूसरे से मोहब्बत करना, तो ये बाब तफाउल हो गया। इसमें शराकत के मानी होते हैं। बाब तफाउल में क्या होता है, इसका माजी क्या होगा फौजिया? तफाअला। तफाला या तफालु, ये मुजारे नहीं है, ठीक है ना। ये एक होता है बाफा आला मुफाला, जो अभी हमने ऊपर के मुफाला, उसी में ता ऐड करके हम तबाब तफाला का माजी मैं बना 2 लें। मिनट को म्यूट होती हूँ, कोई नॉक कर रहा है। कोई बात नहीं, कर तफाला। अच्छा, तहासबा ये आप बना लेंगे, आपके यहाँ पे आएगा बाबा, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे नहीं जा सकते, वही जो हमने तरीका फाला में किया था वही वाला यहाँ पे करना है, हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद रजुलानी तहाबन फिल्लाहि। अब तहाबन जो है बाब इफ्तियाल से आ रहा है, और ये मस्तर आ रहा है, बल्क। अच्छा ये तो अगला वाला ना, अच्छा ये वो ऊपर वाला ही था, सही है। अच्छा अब ये वाला करते हैं बाब इफ्तियाल में। तो ये होता है इत्तज़ा यहतज़ु और इह्तिज़ाज़न। तो इसका रूट वर्ड में कोई हमजा वगैरह नहीं आ रहा, बस 2 लेटर डबल आ रहे हैं। और माजी में आप देखिएगा इफ्ता आला से बनाना है, बजाय इसके कि हम आगे भागे। हमें ये जो कुरान में आ रहा है ना, ये ज्यादा जरूरी है करना, इफ्ता आला। अच्छा जी, अभी करेंगे तो क्या बनेगा, हा, ये तो एक्स्ट्रा है, यहाँ पे आपका हा आ जाएगा, उसके ऊपर सुकून आ जाएगा, फिर आप इhtज़ाज़ा। एहतज़ा बन जाएगा, सही है। और आपका फिर ला भला करे यहाँ पे, और जा हो गया। अब आप इसमें फोर्सफुली करेंगे ना, जी और मैम, तो साकिन करके और उसको मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के लिए इसको फोर्सफुल, क्योंकि पीछे तो जा नहीं सकता, जी जी। तो एहतज़ा बन जाएगा। फिर इसी तरह यहतज़ु बाब इफ्तियाल में यफ्ता इलू के वजन पे, और फिर एहताज इफ्तिआलन हो गया। अच्छा, फिर इन शक्का, मैं वो चाह रही थी जिनमें नहीं होती, ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, मैं वो ढूंढ रही हूँ, वो गर्दान में मिल जाएंगे हमें। इन शक्का यनशक्कु व इंशिकाकन, ये कौन सा बाब है, इनफियाल है, इनफ़िआलन। ये भी वैसे ही होगा। इनफ़ाअला। इस्तक़र्रा यस्तक़िरु इस्तिक़रार। आप करके देखिएगा, अगर कोई मुश्किल है तो पूछ लेना। फ़इन इस्तक़र्रा मकानहु फ़सौफ़ तरानी, अगर वो अपनी जगह पे कायम रहा तो तुम मुझे भी देख सकते हो। इस्तक़र्रा भी इसी तरह बन जाएगा। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं अभी, मुदाफ सुलासी मजीद के तमाम अबवाब से इस्तेमाल होता है, सुलासी मजीद के तमाम अबवाब से, सिवाय ये 2 बाब जो है ना, ये तो हमारे शामिल नहीं है 8 अबवाब में, और उनमें तो इस्तेमाल ही नहीं होता, तो हमें जरूरत नहीं है उसमें जाने की। तो हमें मजीद फी के जो 8 अबवाब है उन्हीं में मुदाफ को इस्तेमाल करना देखना। तो माशाल्लाह आपको आ गया, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो अब इसकी गर्दान देख लेते हैं। दरारा दर्रा बन गया, फिर आप अपनी पूरी गर्दान बना लेंगे, कोई चेंजिंग नहीं है, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आप देखें, इधर दर्रा में आपने मच किया, दर्रा में भी किया ट्रीटमेंट, दर्रू में भी किया, दर्रत में भी किया, दर्रता, यानी एक आपने बना लिया तो सब बना लिए। जब इस सीगे पे आएंगे ना, तो अब ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, अब ये लाइलाज हो गया है मर्ज इसका। क्यों हो गया? क्योंकि बाद में क्योंकि सुकून आखिरी है। स्टेज पे आ गया। साकिन हो गया ना। हाँ, आइडियल सिचुएशन बना भी नहीं सकते अभी। अगर 2 जबर होते तो हम गिरा लेते ना, जी जी लेकिन यहाँ पे पहले जबर आ रही है, बाद में सुकून आ रहा है। तो अब आप इसको ऐसे ही लेके चलेंगे, और देखिए पढ़ा जा रहा है ना। असल में मर्ज क्यों करते हैं, क्योंकि वर्बों को पढ़ना मुश्किल लगता है, तो वो क्या करते हैं, उसको ठप देते हैं, यानी उसको मर्ज कर देते हैं। उनको पढ़ना दरारा है ना, यदरुरू, उनको पढ़ना, वो तो यदुरु कर देते हैं, उनको आसानी चाहिए अपनी लैंग्वेज में। लेकिन यहाँ उनको कोई मुश्किल ही नहीं हुई, उनको छोड़ो।
इतना अच्छा लफ्ज है, दररना, दररता, दररतुमा, दररतुम, दररती, दररतुमा, दररतुन्ना, दररतु, दररना। जुबान चल रही थी ना, रहने दो। और हमने रूल बना लिए। अगर यहाँ चेंजिंग लाते तो हम भी करते, लेकिन नहीं है, कोई रूल हम बना लेते। फिर अगर कोई चेंजिंग करते तो हम भी रूल बना लेते, लेकिन उन्होंने बनाया ही नहीं, तो हमने कहा चलो उसको लाइलाज कर दो। फिर यदुरु में क्या है आपका, ये वाला मेरे ख्याल में वो वाली सिचुएशन बनेगी ना, यफउलु वाली, वो हम कर चुके हैं, मैंने अभी करा रही पूरा। यफउलु जब आप डालेंगे इसमें, तो यहाँ पर आपका आएगा तो ट्रांसफर का कायदा होगा, और फिर ये खाली हो जाएंगे तो ये बन जाएगा। फिर उससे पूरी गर्दान बना लें, कोई चेंजिंग नहीं हो रही, बस आपने यहाँ पे करनी, यहाँ पे आपने मर्ज नहीं करना, वो मर्ज हो गई नहीं तो कैसे करेंगे। ये वाहिद के सीगों में 1 2 3 और ये 4 और ये 5, बस इनमें हो रही है। और जमा के सीगों में भी हो रही है, उसमें भी हो रही है। बल्कि यदुरु बना लिया तो जरूरत ही नहीं है, नून लगा दें आगे, है ना। जी। सिर्फ यदुरु नून बनाया, निस्वा के सीगों में नहीं हो रहा। हाँ नून से नहीं, नून निस्वा नहीं, ये पूरे जितने सीगे हैं सारे। नहीं, तशदीद जो है अच्छा इनमें अच्छा, इन दो में नहीं हो रही। जी। हाँ जमा बाकी, के ये सीगों में। हाँ बाकी ये सब मुजारे में सब में हो रही है, इन दो में नहीं हो रही। जी, हाँ ये इस वाला दो, छठा और एक 12वां। एक ये है और एक ये वाला, जी दो जी इसमें भी हो रही है। ठीक है, इसमें भी हो रही है, तो वो जहां होगी आपको नजर आ जाएगी। तो आपने तो गर्दान बनानी है, आपने ये एक सीगा ये बना लेना है और एक सीगा ये बना लेना है, तो बस उससे बना लेने हैं सारे। तो उसके बाद आपका फर्रा, ये वो वाला आ गया, फर्रा फर्रू। तो इनके जब आप बनाते हैं ना, फर्रत, फर्रता, फर्रना, अब यहाँ से नहीं हो रही, ठीक है, बाकियों में हो रही है। माजी में तो बहुत आसान है, मुजारे में जब करेंगे तो मुजारे में फिर ये वाकई सही बात है फौजिया वाली, कि इन दो में नहीं हो रही है, बाकी सब में हो रही है। ठीक है, तो आप या तो इसी से बना लें सारे, ठीक है, गर्दान आपको याद है तो उसी से बना लें। नहीं तो फिर अगर आप प्रैक्टिस के लिए बनाना चाहते हैं तो करके देख लें, ये किस वजन पे बनेगा। या फिर रू तो बन गया ना, अच्छा इसको देख लेते हैं पहले बना के। या फिर रू, क्योंकि यहाँ जेर आ रही है ना, तो इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा यफ इलू के वजन पे है, यफ इलू। अब इसमें जब आप डालेंगे या फा, यफ इलू, तो ये पीछे जाएगा, ठीक है, तो ये आपका क्या मर्ज हो जाएंगे दोनों, तो यफ रू बन जाएगा। फिर अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये किस वजन पे है, यफ इलानी के वजन पे है, यफ इलू, यफ इलानी, यफ इलूना। ठीक है, जिस बाप से वो बन रहा हो उसी वजन पे आपने डालना है। फिर वो जेर आप पीछे करेंगे, दोनों को मर्ज करेंगे तो बन जाएगा अलिफ नून। नहीं तो इसी में आगे अलिफ नून लगाएं, और आपको पता है कि अलिफ से पहले जबर होती है, तो इसको जबर में चेंज करें, पेश नहीं होती, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। आनी लगाने से पहले जबर लगानी पड़ती है। जब भी आप इस समय में मुसन्ना बनाते हैं तो पहले आप जबर लगाते हैं, फिर आनी साउंड लगाते हैं। फिर आप इसी तरह जब जमा बनाते हैं तो पहले पेश लगाते हैं, फिर ऊना साउंड लगाते हैं। वही तरीका है इसम वाला, ठीक है। तफिरु इसी से बन जाएगा, ये भी तफिरु है, तफिरीना, तफइलीना के वजन पे, ठीक है। अब फिरु, नफिरु और ये सारे आपके बन जाएंगे, मुश्किल नहीं, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अब ये वाला जो है ना, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ जबर आ रही है, मुजारे में इसमें यहाँ पेश आ रही है, और इसमें आप वही है, मस्सा, मस्सा, मस्सू, मस्सत, मस्सता और मसिसना, यहाँ नहीं आ रही, कोई भी तब्दीली नहीं आ रही। मसिस्तुन्ना, कोई भी तब्दीली नहीं आ रही यहाँ पे। बाजी में तो आती ही नहीं है ना, क्योंकि साकिन हो जाता है छठे लेटर से। हाँ हो जाता है, सेम बन रही है, कोई मुश्किल नहीं है। बस इसमें ना थोड़ा सा, इसके जब अम्र वगैरह बनाते हैं ना, उसमें तब्दीली आती है। इसका जब जैसे अम्र बनाते हैं तो किस सीगे से बनाते हैं, मैं भी आपको बता देती हूँ। तमस्सु से। तमस्सु से बनाते हैं, तो इसको हम जी। गिराएंगे, ठीक है, और इसको और क्या आखिर में करेंगे, सुकून साकिन देंगे। करते हैं। सुकून। अब यहाँ पे 2 साकिन इकट्ठे हो गए, दो सुकून। ठीक है। अब हमजा तो लगाने, हाँ हमजा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पढ़ा जा रहा है ना, मुतहरिक है ना जी लफ्ज। जब ये वाला जी। साकिन होता है तब हमजा लगाते हैं। जी तो अब आप क्या करेंगे कि 2 साकिन अरब लोग बुरा समझते हैं, तो वो क्या करते हैं, पहले वाले को रहने देते हैं और दूसरे वाले को जबर दे देते हैं।
मस, तो ये आपका माजी और ये अमर एक जैसा बनेगा, माजी और अमर इसमें एक जैसा बना। माजी भी आपका मस्सा बना था ऊपर, ये देखें मस्सा बना, जी। और लेकिन वो टेक्स्ट में फिर पता चल जाता है या अमर बन रहा है या वो माजी बन रहा है। लेकिन तो ये अमर में पेश आएगा ना, और माजी में, अच्छा माजी में पेश है। माजी में पेश है ना, नहीं मस्सा, हाँ मस्सा दोनों आप देखिएगा, अमर इसका ऐसे ही बनता है, इसका अमर ऐसे ही बनता है, आगे बनवाएंगे भी शायद आपको अमर, ठीक है, नहीं तो मैंने यहाँ बनवा दिया आपको। तो ये बन गया, इसमें यही चीज है, बाकी कोई नहीं है, बाकी अमस्सु नमुस्सु सारा उसी तरह बन रहा है। अच्छा फिर नाही वगैरह होते हैं, मजहूल होते हैं, वो देख लेंगे। अभी यहाँ पर आपका फेल मजहूल आ ही गया, चलें। तो ये क्या बन गया, मुद्दा बन गया। अब मुद्दा कैसे बना, इसको आप फुइला के वजन पे। अच्छा एक बात इसमें याद रखें कि अगर माजी फेल है, ठीक है, और उसमें पहले वाले लेटर पे दम्मा आ गया है, तो क्योंकि माजी में कभी भी पहले लेटर पे दम्मा नहीं आता, कितने फेले माजी आपने पढ़े हैं ना, मजीद के भी पढ़े हैं उसी में। लेकिन अगर पहले लेटर पे मद्दा आ जाता है तो इसका मतलब है वो माजी ही है। मुजारे में तो ये होता है ना, हमें दो कंडीशन देखनी पड़ती है, सेकंड वाली भी क्या हो, जबर आ रही हो ना इन कलमे पे, इसमें भी जेर आती है, लेकिन क्योंकि इसके माजी में कहीं भी पेश नहीं आती, इसलिए जब भी पेश आए तो समझ ले वो मजहूल ही है, ठीक है, वो माजी मजहूल ही है। तो यहाँ पेश आ रही है, अब इसका क्या होगा, ये फुइला के वजन पे बना हुआ ना, तो इसको हम क्या करेंगे, मीम पे पेश और दाल के नीचे जेर और लाम पे भी जेर, जबर। अब ये क्या होगा, इसको जब दस्ती गिराएंगे ना, तो अब क्या होगा, ये मुद्दा बन जाएगा हमारे, फिर मुद्दा, मुद्दू, मुद्दत, मुद्दता, ये पूरा मजहूल की गर्दन आपने बना ली। यहाँ पे ये मर्ज नहीं होगा, मुद्दना हो ही नहीं सकेगा, यहाँ तो कर लिया हमने जबरदस्ती, यहाँ जबरदस्ती भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका मुद्दतू और मुद्दना बन गया। यहाँ पे दो ता कैसे आ गए थे, यहाँ पे भी ये सोचने की बात है ना। हाँ, तो ये मुद्दत तो बन गया, मुद्दता भी बन गया, मुद्दना भी बन गया, यहाँ मुद्दता, या तो सही है ना, या तो वो हाजिर के लिए आ गया ना। नहीं वो तो ता होगा ना खाली। हाँ ता होगा। एक हमजा जमीर है और एक क्या है, हाँ ये वाला जो है ना, इसमें दो ता क्यों आ रहे हैं, जब आपके दो हम मखरज हर्फ आ जाते हैं ना, तो फिर उसमें ये जरूरी होती है तशदीद लगानी। हाँ, एक ही मखरज से अगर दो वर्ड आ रहे हो ना, तो फिर हम तो इस दाल को नहीं पढ़ेंगे, ता को दो दफा पढ़ेंगे। हाँ इसको नहीं पढ़ेंगे, अभी इसको कैसे पढ़ेंगे, मुद्दिता, मुद्दिता नहीं पढ़ेंगे, मुद्दिता पढ़ेंगे, दाल को ड्रॉप कर देंगे। हाँ दाल जो है ना, ये इसलिए ताल लाई गई है ताकि इसको पढ़ें और इसको ना पढ़ें, ये थोड़ा सा मसला है इसमें। मुद्दिदा में कोई मसला नहीं हुआ था, जहां पे आपके ता आएंगे ना, जहां जहां ता आएगा वहां पे आपको दो ता लगाने पड़ेंगे, और उसमें से एक ता सुकून वाला होगा, इसको हम अब देखिए, ये हरफ खाली है, इसके ऊपर कोई हरकत नहीं आ रही, इसको नहीं पढ़ा जाएगा। जब भी कोई हरफ खाली हो ना, उसको नहीं पढ़ा जाता, ता पे सुकून भी आ रहा है, पेश उसको पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, ये खाली, ये सिर्फ बीच में लिखा रहेगा रूट वर्ड के तौर पे, सही है। तो दो हम मखरज हरफ इकट्ठे आते हैं तो फिर तशदीद आती है, और उनको पढ़ा जाता है, इसको नहीं पढ़ा जाता। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, मुद्दिदना था। जहां पे ता आ रहे हैं ना, वहां पे ये मसला पैदा हो रहा है सब जगह पे, यहाँ भी पैदा हो रहा है, मुद्दिती, मुद्दिती हो रहा है, मुद्दितू, और यहाँ भी नहीं हो रहा मुद्दिदना में। तो ये आपको खुद ही पता चलेगा जब आप बनाएंगे गर्दान तो, सही है। तो ये एक इसमें नोट करने वाली बात है। बाकी युमद्दु युफलू के वजन पे है। मैम ये दाल इसलिए नहीं पढ़ा जा रहा कि फिर इस पर सुकून भी नहीं आ रहा।
اور खाली है ना। सुकून जी आगे वाली तशदीद की हाँ वजह से खत्म हो हाँ गया है। बिल्कुल। जब भी दो हम मखरज हरफ तजवीद का रूल है कि इकट्ठे आते हैं जी तो फिर हम, पता है मैं इसको कैसे याद करती थी कि हाँ, ये दाल पे सुकून होता है ना वैसे तो, है ना, पीछे जी जो दाल होता है उसके पे सुकून होता है जी और आगे तशदीद आ रही है, तो मैं इसको ऐसे याद करती थी कि जब पहले सुकून आ जाए फिर तशदीद आ जाए तो फिर छोटी मछली को नहीं पकड़ेंगे, बड़ी को पकड़ेंगे। अच्छा जब मैंने कुरान पढ़ा था तो मैं इसको तरीके से याद करती थी, तो छोटी मछली को छोड़ देंगे, वो बड़ी वाली मछली को पकड़ेंगे, उसमें फिर एक जो दाद है उसकी पढ़ेंगे, उसका जो सुकून है वो पढ़ेंगे, क्योंकि दाल और ता का मखरज एक ही है ना, दाल और ता का या मखरज, जैसे इस तरह जाल और उसका मखरज जो होता है ना, दाल और जाल का भी एक ही होता है। तो आपने देखा होगा कि वहां पे कभी कभी ना हमने पढ़ा भी था कि वो दोनों को दाल में चेंज कर देते हैं या दोनों को जी जी जाल में चेंज कर देते हैं, वही वाली बात है यहाँ पे भी। अब युमदिदु में युफ इलू होगा, युफ अलू होगा ना, क्योंकि आपका ये क्या है, मजहूल है, मजहूल का वजन ये। अब आप इसमें रूट वर्ड डालना है तो ये आपका पेश हो जाएगा। आगे मीम पे सुकून, मीम पे क्या आएगा, सुकून ही आएगा, सुकून सॉरी आएगा। सुकून, युम दा और दू, दाल पे पेश, दाल पे पेश, युम दा दू दाल हो पे गया। जबर लगा दो। अब इसको ट्रांसफर की कायदे से करके इसको यमुद्दू, लेकिन यहाँ पे युमुद्दू बन रहा है, यू मद्दू बनेगा, ये पीछे जाएगा ना, यहाँ जबर हो जाएगी, यहाँ सुकून आएगा तो यमुद्दू बन जाएगा। फिर उससे गर्दान बनाए, पूरी गर्दान बना ले। अब यहाँ पे कोई मसला ऐसा ता वाला आ नहीं रहा, मुजारे में छुट्टी हो गई है आपकी, तो यहाँ पे कोई मसला नहीं आ रहा, यहाँ पे सिर्फ आपने मर्ज करना है, पूरी गर्दान बना देंगे। बस अब ये आ गया आगे, इसको खत्म करते हैं, बाद में पढ़ेंगे। ये आगे हरफ इल्लत आ गए और ये फिर मिसाल और वो शुरू हो रहा है, समझ आइए। जी ये आपका मैं वो मोतल फेल शुरू हो रहा है ना, ये बताया नहीं, ऐसे ही शुरू कर दिया। तो मिसाल पढ़ेंगे, ज़ाहिर है ये आ रहे हैं ना हरफ इल्लत सारे, तो ये मुदाफ तो नहीं हम पढ़ रहे ना, ये खत्म हो गए यहाँ पे 250 पेज में। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, ठीक है। आसान था सबक, मुश्किल नहीं था, उसको सवार नहीं करें मैम सर पे। कोई और लफ्ज भी हमें एक दो बता दें जो पिछली वाली गिरदान है ना उसकी, ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें। विच वन? जैसे ये मुद्दा, हाँ दे दूंगी, ऐसा कोई बात नहीं, मैं आपको लिख के दे दूंगी, सही है, पेपर पे, और ठीक है, आप हम दो भेज तीन लफ्ज ऐसे देंगे। हो ना तो फिर प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी, क्योंकि हाँ ये डिफरेंट है ना आप कुरान गिरदान। मजीद से भी ले सकती हैं, ज्यादा कुरान मजीद के लफ्जों की प्रैक्टिस करें, ठीक है, ठीक ताकि हमारा मकसद उधर ही है और हमने वही करना है। तो जहाँ पे आते हैं ना डबल लेटर वाले, हाँ तो उनसे आप करें, ठीक है। आपने रूल सीख लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, सही है, रूल आपको आने चाहिए। क्या करना है, अब जैसे एक रूल नया यहाँ पे आ गया था ना कि जी डबल ता आ गई थी, तो यही आपके लिए नई चीज थी, बाकी तो हमने पढ़ी हुई थी सब। जी और एक वो जो मैंने अमर बनाया, हाँ जी, कि वो तो माजी जैसा हाँ बनेगा। माजी जैसा बनेगा, दोनों सेम होते हैं, क्योंकि ये मैंने पढ़े हुए ना, तो मैं आपको इंशाल्लाह ना उर्दू में भी पढ़ा दूंगी, बुक लेके ना, मेरे पास है पीडीएफ, अगर उसका मैं खोल के आपको वहां से भी पढ़ा दूंगी, तो उससे ठीक भी आपको बेटर चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। ठीक जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरन, सुब्हानक बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम जज़ाकल्लाह खैर तो शाइस्ता बिल्कुल घबराए नहीं, ठीक है, आ जाएगा, जी ये थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, नहीं मतलब जी पहले एक चीज इंशाल्लाह आती है फिर उसके बाद दूसरी तीसरी आती जाती है ना, अगर पहली वाली पक्की होगी तो दूसरी भी आ जाएगी, बस ये इंतजार करना है पहली कब पक्की होती है। जी ओके, इंशाल्लाह, आ तभी तो जाएगा, मैं 7 क्लासेस ले रही हूँ बिल्कुल लें, कि मैं बिल्कुल लें, सुनती कोई रहूँ बात नहीं, जी कोई बात नहीं, आप लेती रहे और चलती रहे, जी जितना समझ आ रहा है उतना लें, और टेंशन बिल्कुल ना लें, ऐसा ना हो जी बीमार इंशाल्लाह। होके बैठ जाए। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके जज़ाकल्लाह खैर। वही है कि देखो फौजिया कितनी खुश रहती है, कोई टेंशन नहीं लेती नहीं, जब हाँ, गुमसुम होती हो तो हो जाती हूँ, जब कुछ ऊपर से गुजर रहा होता है, नहीं लेकिन ये फिर फिर आ लेके जाता है ना, फिर आ ऐसा कभी जाता हुआ है है। कि आपको समझ ना आया हो, नहीं, आ जब जाता है। दोबारा सुनती हूँ जो चीजें मुश्किल लग रही होती हैं फिर आ जाती हैं समझ, चलिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। आसानियां करे हम सब के लिए आमीन और खैर आमीन। आफियत से रखे, दुनिया में बहुत फितने हैं। ओके, अल्लाह आमीन। हाफिज।